Assalamu alaikum. Pakistan Studies, lesson number 11, part A, from chapter number 9, Population, Society and Culture of Pakistan. Today, our main topics are first one is growth and distribution of population in Pakistan, second, the rural and urban distribution of population, third one is education structure of Pakistan plus education problems and solution of Pakistan. Questions which are we covered in the topics. Question number 1, 3, 4, and 5. Question number 1 is write a briefly note on growth and distribution of population in Pakistan. Question number 3 is write a note on the rural and urban distribution of population. Question number 4 is what of Pakistan do you know about the education structure of Pakistan? Question number 5 is what are the problems of education and give their solutions. Our first topic is growth and distribution of population. First point is density. Density of population mean or a population density is a number of people per unit of area usually cubic per square kilometer or square mile and which may include or exclude for example area of water or glaciers. Commonly this may be calculated for a country, city, country, county, another territory, or the entire world. Basically, density of a population means the average number of people living in a square per kilometer. Pakistan is a densely populated country. According to its population, it is the sixth largest country in the world with the respect to its population. इसके अलावा अगर ऑर्डर के लिहाज से दूसरी कंट्रीज की बात करें तो पहला नंबर चाइना का, देन इंडिया, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया एंड ब्राजील जो है वो आते हैं. नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन. सबसे पहले हम पॉपुलेशन का मतलब समझेंगे. पॉपुलेशन का मतलब है कि किसी भी एरिया के अंदर या पार्टिकुलर प्लेस के अंदर जो लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं किसी खास जो है तरीकाकार के तहत या एक जैसे तरीकाकार के तहत जो लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है वो उस एरिया की पॉपुलेशन कहलाती है. या यूं भी कहा जा सकता है ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस. किसी भी एक एरिया के रहने वाले जो लोग होते हैं वो उस एरिया की पॉपुलेशन कहलाती है. अकॉर्डिंग टू अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा 2011 टू 12 का उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 18 करोड़ 7 लाख जो है उससे तजावज कर चुकी है, उससे बढ़ चुकी है. इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2.03 पर annum. Next point is growth in population. The growth of population is much higher than its resources. अगर हम दूसरे स्टेट्स के साथ खुद को कंपेयर करें तो दूसरे स्टेट्स के पास रिसोर्सेज तो मौजूद हैं अगर उनकी आबादी बढ़ रही है. जैसे चाइना है, चाइना जो एक बहुत एडवांस कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है, अगर उसकी आबादी बढ़ रही है तो वो उसको कंट्रोल करने के और अपने लोगों को लाइफस्टाइल देने के काबिल है. लेकिन पाकिस्तान के पास उस तरह के रिसोर्सेज मौजूद नहीं है. Population growth is increase in the number of individuals in a population. Many nations with rapid population growth have low standards of living, whereas many nations with low rates of population growth have high standards of living. Dancing in Pakistan. Pakistan population is equivalent to 2.83% of the total world population. Pakistan ranks number 5 in the list of countries by population. The population density in Pakistan is 287 per kilometer square. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2011 to 12 important information about Pakistan population is like अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 67.55 मिलियन जो है लोग वहाँ पे आबाद हैं. रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो 13.16 मिलियन के करीब है. एवरेज एज ऑफ फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो 66.1 ईयर्स और अगर एवरेज एज ऑफ मेल्स की हम बात करें तो 64.4 ईयर्स है.
अगर डेंसिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इन पाकिस्तान द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल। जैसे कि पंजाब जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। 54% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। अगर एवरेज डेंसिटी देखें हम पाकिस्तान के अंदर तो 185% पर स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। और इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो 354% पर स्क्वायर किलोमीटर आती है। अगर हम सिंध के बारे में बात करते हैं तो 213% पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा is 236% per square kilometers. If we talk about Balochistan is 19% per square kilometer. Tribal areas की अगर बात करें तो 125% per square kilometer. और अगर सिर्फ इस्लामाबाद की जो डेंसिटी है या एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इस्लामाबाद है तो 1137% पर स्क्वायर किलोमीटर मौजूद है। Our next point is census. To develop a meaningful and successful plan for any country, facts of population should be available. अगर हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का नहीं मालूम होगा, ग्रोथ फैक्टर का मालूम नहीं होगा, तो हम किसी भी तरह से पॉपुलेशन जो है उसको, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, रीजनल पॉपुलेशन कितनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, रूरल और अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से लोग कितने, और कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही है, कितने लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, प्रोफेशंस क्या हैं, जॉब्स क्या हैं। अगर हमें ये सब कुछ जानना है तो उसके लिए हमारे पास सेंसस रिकॉर्ड जो है होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हम सबसे पहले सेंसस को समझेंगे कि सेंसस होते क्या। अ सेंसस इज अ प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिकली enumerating and acquiring and recording information about the numbers of a given population. अगर सिंपली बात करें, an official count of or a survey especially of a population. पाकिस्तान के अंदर सेंसस जो होते हैं, नेशनल सेंसस इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू बी हेल्ड एवरी 10 years। 10 साल के बाद जो है सेंसस जो है या मर्दमशुमारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होती है। Since 1951, there have been only 6 nationwide census. 1961 में एक सेंसस हुआ, उसके बाद 1972 में, फिर 1981 में, फिर 1998 में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप आने के बाद और डिले होने की वजह से 2017 के अंदर जो है हमारा एक सेंसस जो है वो लास्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सेंसस इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सेंसस हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था। Our next point is the rural and urban distribution of population. Urban refers to human settlement where the rate of urbanization and industrialization is high. On the other hand, in the rural settlement is one where the rate of urbanization is quite slow. इसी तरह अगर हम दोनों सेटलमेंट्स के दरमियान डिफरेंस देखें तो अर्बन एरियाज जो होते हैं वो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, जबकि रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आबादी बहुत कम होती है। Our next topic is differences between urban and rural population. अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो एवरेज डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो होती है वो 5000 के करीब होती है, और तमाम फैसिलिटीज जो होती हैं उन एरियाज पे जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, रोड्स एक्सेट्रा। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाबशाह, रावलपिंडी, गुजरांवाला हैज इंक्रीज्ड क्विकली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और ये पाकिस्तान के बड़े पॉपुलेटेड शहर हैं और जहाँ पे आबादी के साथ साथ फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। इसी तरह रूरल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो रूरल पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द पीपल हु लिव इन अ स्मॉल विलेज एंड फार फ्रॉम एरियाज वेयर सिविक amenities are scarce. 2/3 of the population of Pakistan lives in villages and depend on agriculture for their livelihood. अगर हम वहाँ की बेसिक नीड्स के बारे में बात करें या दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को देखें तो अगर रूरल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो नहीं मौजूद होती, एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती, इवन हेल्थ फैसिलिटीज जो होती हैं
वो भी मौजूद नहीं होती। बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो वहाँ पे कोई एक आध जो है वो लेबॉर्ट्री मौजूद होती है, या एक आध छोटा सा क्लिनिक जो है वो किसी भी गाँव के अंदर मौजूद होता है। या फिर और कोई ख़ास सीवेज सिस्टम नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग सीवेज सिस्टम मौजूद नहीं होता। उसके साथ-साथ फैसिलिटीज़ जो होती हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जैसे पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, एक्सेट्रा वगैरह, ग्राउंड्स वगैरह होती हैं, उनकी भी कमी होती है, कोई ख़ास इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं होती। उसके साथ-साथ एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर इसका जो रूरल लाइफ़ है उसका कंपेयर हम अर्बन लाइफ़ के साथ करें, तो अर्बन लाइफ़ के अंदर तमाम सिविक एमिनिटीज़ जो होती हैं वो सिटीजन्स को दी जाती हैं, सिटीज़ के अंदर मौजूद होती हैं कंपेयर टू विलेजेस। एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो होती हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर मौजूद होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है वो मौजूद होती हैं। उसके साथ साथ सेवरेज सिस्टम जो होते हैं प्रॉपर सिटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, प्लस पार्क, लार्ज ग्राउंड्स और अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी सिटीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं हाई लेवल पे मौजूद होती है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज के साथ साथ लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। Our next topic is gender-wise distribution of population. First point is male ratio in population of Pakistan. अगर मेल रेशियो की बात करें तो सेंसस रिपोर्ट जो 1998 में हमारे सामने आई उसके मुताबिक the males constitute 45% of the total population, while according to survey report 2011 to 12 male ratio जो है हमारे पास अब 51% है। फीमेल रेशियो की अगर बात करें तो फीमेल रेशियो जो है हमारी पहले 1998 के अंदर 55% थी, और अब जो है हमारी अगर 2011 टू 12 की फीमेल रेशियो की बात करें तो वो 49% है। रेशियो ऑफ मेल इन अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मेल्स इन द अर्बन एरियाज वाइल रूरल एरियाज हैव लो नंबर ऑफ मेल्स, क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो काम के सिलसिले में अर्बन एरियाज जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, ज्यादातर वो वहीं पे सेटल हो जाती हैं, एजुकेशन के सिलसिले में वहाँ शहरों के अंदर मौजूद होते हैं, इसीलिए जो रूरल एरियाज है वहाँ पे मर्दों की तादाद जो वो है कम है। ग्रोथ रेशियो ऑफ मेल्स की अगर बात करें तो द रेट ऑफ द बर्थ ऑफ मेल्स इन पाकिस्तान इज मच मोर देन फीमेल। By this factor, male population was 58%. This increase is still small as compared to each of the developed countries. Each of underdeveloped countries के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी निस्बत हमारे यहाँ मर्दों की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत औरतों की। Our next topic is education structure of Pakistan. Education is the basic necessity of a man. It is not only a general process of reading and teaching, but also a constant process through which a man is introduced to environment and culture to develop the association with them. Pakistan education system is divided into 5 levels: primary, middle, high, और अगर हाई की बात करें तो ग्रेड 9 टू 10 लीडिंग टू द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट आ जाता है, उसके बाद इंटरमीडिएट जो है वो 11 और 12 जो है उसको कहा जाता है। देन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं लीडिंग टू ग्रेजुएट एंड एडवांस डिग्रीज को जो है वो कवर करता है। The education structure of Pakistan is divided into the following stages. First one जो है prep and primary education है। The education before class 1 is called prep. This is usually includes children aged between 3 to 4. उसके बाद हमारी primary education आ जाती है। In Pakistan, the primary education is imported from class 1 to 5. फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोशिश करती हैं कि प्राइमरी स्कूल जो हैं वो विलेजेस जो हैं उनके अंदर भी सिमिलर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बच्चों को दी जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट्स जो है जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए स्टेप्स लिए हैं। उसके बाद हमारी मिडिल एजुकेशन या मिडिल स्टैंडर्ड्स आ जाती हैं। उसमें द एजुकेशन फ्रॉम 6 to 8 is called middle standard. Government is producing more facilities for this level. At this level, the technical education is also provided along with the general education.
नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में हमारी 9th और 10th क्लासेस आ जाती हैं। टू इंक्रीज द एजुकेशन फैसिलिटीज एट दिस लेवल, न्यू सेकेंडरी स्कूल्स आर बीइंग ओपन। उसके बाद हमारे पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, जो कि हमारे कॉलेजेस में शुरू हो जाती है, जिसे हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नाम देते हैं, और इंटरमीडिएट एजुकेशन भी कहलाती है। एजुकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स एट दिस लेवल, और यहाँ पे आके आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो है उसको चूज करते हैं। आपको मेडिकल जो ज्वाइन करनी है, या आपको इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी है, या आपको कोई आर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वो यहाँ पे आकर उस डिग्री को जो है सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोसीजर ऑफ एग्जाम्स की बात करें, तो द क्लास 5 to 8 एग्जाम्स आर हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लास 8 और 5 के जो है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उसके साथ साथ 9 to 12 जो है उनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, जिनको सुपरवाइज करते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रेड आ जाता है, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ जाती है। आफ्टर हायर सेकेंडरी द यूनिवर्सिटी एजुकेशन commences. Many universities in the country have been established for education of this level. There are many types of university education. This education includes degrees of BA, BSc, BS, Masters, or different types of masters. Many colleges provide higher education as well. For professional studies, students have to get admission to professional colleges, जैसे आपके टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह मौजूद होते हैं, या कॉमर्स से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मौजूद होते हैं। Our next topic is education problems of Pakistan. The lack of sufficient fund is the major problem in the development of education. Outlay for education in 5-year plans has been decreasing due to insufficient funds. Most educational institutions lack infrastructure, science equipment, libraries, etc. Some most important problems are given below. First one is low literacy rate. सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इलिटरेट है, और लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर हम कंपेयर करें, और इसी वजह से हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो भी लो हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, और उसकी बहुत सी रीजंस हैं, लाइक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, अनट्रेन टीचर्स हैं, ठीक है, जो काबिल नहीं होते लेकिन सफारशों पे भर्ती हो जाते हैं। उसके साथ साथ शॉर्टेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, स्किल जो है टीचर्स को नहीं सिखाई जाती। उसके साथ साथ शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स है, इनसफिशिएंट फैसिलिटीज ऑफ लेबॉर्टरीज और लाइब्रेरीज हैं। उसके साथ साथ हमारा जो इम्तिहानात का निज़ाम है, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा। उसके साथ साथ जो सोल पर्पस होता है डिग्री हासिल करने का या एग्जामिनेशन को पास करने का हमारे यहाँ, वो एजुकेशन से ज़्यादा जॉब्स हासिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज है लैक ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक। हमारी टेक्स्ट बुक एक और जो प्रॉब्लम है कि ये है कि क्वालिटी बुक्स जो है हमारे पास मौजूद नहीं होती। करिकुलम जो है वो बहुत अरसे बाद चेंज किया जाता है, उसे वक्त के साथ साथ अप टू डेट नहीं किया जाता। और दूसरा एजुकेशन इशू टेक्स्ट बुक के लिहाज से ये भी है कि डिफरेंट एरियाज जो है उनके अंदर डिफरेंट टाइप का जो करिकुलम जो है वो पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फर्क, एक डिफरेंस जो है हमारी सोसाइटी में जो है वो जन्म लेता है। लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो हमारा वो ये है कि लिमिटेड फैसिलिटीज हैं, हेल्थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज जो है हमारे स्कूल्स में नहीं करवाई जाती। बहुत छोटे छोटे स्कूल्स के बहुत छोटे छोटे एरियाज के अंदर हमारे स्कूल्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन ट्रेनिंग के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। उसके साथ साथ लैक ऑफ गाइडेंस है कि हमारे बच्चों के पास गाइडलाइन मौजूद नहीं होती कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और कौन सा नहीं सिलेक्ट करना, उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, और इसी वजह से वो अपनी स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले पाते। उस उसके साथ साथ हमारे पास बहुत लिमिटेड इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री वेयर द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, और पॉपुलेशन जो है हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ ओवर पॉपुलेशन की वजह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो कम पड़ रही हैं, और जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो ज़्यादा हो रही है।
और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान के वो बिलोंग करते हैं पुअर क्लास से या मिडिल क्लास फैमिली से, और पुअर जो क्लास से बिलोंग करते हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है स्कूल नहीं आ पाते। उसके साथ साथ है लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान के अंदर अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, और इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल करने से रह जाते हैं। इसके बाद आ जाती है लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। अगर हम एजुकेशन के लिए सिर्फ किताबों का होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है, जैसे एक अच्छी बिल्डिंग होना, कम्युनिकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की फैसिलिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे बहुत से स्कूल ऐसे, स्पेशली रूरल एरियाज में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस तक मौजूद नहीं। Next one is unemployment. According to the survey, nearly 1 crore people are unemployment. So they prefer do work and develop technical skills in their children during their school going age. क्योंकि उनको खुद नौकरियां नहीं मिली होती, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी धक्के ना खाएं, बल्कि कुछ ऐसा टेक्निकल काम सीख लें तालीम सीखने की बजाय, जिससे उनको रोजगार मिल जाए। और नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ साइंस लेबोरेटरीज। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर साइंस लेबोरेटरीज जो है, रिसर्च सेंटर्स जो हैं, या साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी बहुत कम है। ड्यू टू दिस रीजन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन वी फेल टू डेवलप स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। यानी हम स्टूडेंट्स को थ्योरी तो पढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी तो लर्न की होती है, किताबें तो रटी होती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि कौन सा काम किस तरह करना है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ गुड टीचर्स। दिस इज द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड ट्यूटर्स जो हैं या स्टाफ्स जो है या टीचर्स जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उन टीचर्स को फारिग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग इस फील्ड में आने से डरते हैं। नेक्स्ट वन इज टीचर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। Respect of teacher has not been maintained by government, which is spoiling ethically values and oriented students. जब गवर्नमेंट या किसी मुल्क के अंदर टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, किसी सोसाइटी के अंदर टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो ऑफ कोर्स वो टीचर्स जो हैं वो दिल लगा कर मेहनत करके बच्चों को तालीम जो है उससे आरास्ता नहीं करेंगे, तालीम नहीं देंगे, वो खुद तालीम देने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन जो है या तालीम जो है उसको बहुत से मसाइल का सामना है। Our next topic is solutions of educational problems of Pakistan. There are many solutions of educational problems like education facilities. To take certain steps to increase the literacy rate in country, सबसे पहले हमें education facilities जो है पूरी country के अंदर बगैर किसी discrimination के provide करनी है। उसके साथ साथ improve करना हमें education standards को, उसके लिए भी हमें step लेना चाहिए, same education हो, same curriculum हो, और स्टैंडर्डाइज जो है या एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसको भी रेज किया जाए। उसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्डाइज बुक्स होनी चाहिए, हर स्कूल के अंदर सेम सिलेबस पढ़ाया जाए, सेम बुक्स पढ़ाई जाए, और एक जैसे स्टैंडर्ड जो है वो रखा जाए। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उन जो लाइक स्पेशली जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उनको बैन कर दिया जाए, जिनमें स्टूडेंट्स या इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर गाइडेंस जो है बाकायदा दी जाए, और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में जो है उनको बाकायदा गाइडलाइन जो है मुहैया की जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकें। उसके साथ साथ स्पेसिफिक बजट जो है, एनुअल बजट जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि एजुकेशन जो है उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फैसिलिटीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को दी जा सकें।
Next one is increase of education institution. Government should increase the number of education institution in the country. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे education institutions जो हैं उनमें भी इजाफा होना चाहिए. Government should provide the maximum opportunities of jobs in the country ताकि unemployment जो है उसको खत्म किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो तालीम की तरफ तवज्जो दे सकें. इसके साथ साथ स्कूल्स जो हैं उनके अंदर साइंस लेबोरेटरीज रिसर्च सेंटर्स कायम किए जाएं ताकि बच्चे वहाँ पे टेक्निकली जो है एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें. उसके साथ साथ क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाए और ये काम भी गवर्नमेंट का है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है क्वालिफाइड और अच्छे ट्रेन टीचर्स जो हैं उनको भर्ती किया जाए. Plus stability in policies. Government should make the policies to enhance the education in country on permanent basis. पॉलिसीज जो है वो स्टेबल की जाए, ये नहीं कि आए दिन पॉलिसीज को चेंज किया जाए. फैसिलिटीज टू टीचर्स और इसके साथ साथ टीचर्स को रिस्पेक्ट दी जाए और उनकी जो उनको फैसिलिटीज मुहैया की जाए ताकि वो अपने सोशल इश्यूज से आज़ाद होकर एजुकेशन पर तवज्जो दे सकें. ये चंद एक पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने एजुकेशन प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान के अंदर से काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं. Okay students, today your home task is learn the question number 1, 3, 4 and 5 plus learn the short questions. Dear students, I hope you understood all the topics in questions very well. Complete your home task on time and learn it. Thank you.